رسول الله. شاید محمد ہماری دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے؟ نہیں، محمد اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر سمجھتا ہے اور وہ اپنے کاموں سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ ابو طالب اب بھی اگرچہ اس نے محمد کا دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن شدت کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہوں ابو سفیان۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ محمد کی حمایت کرتا ہے، لہٰذا اگر ضرورت ہوئی تو ابو طالب کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو ابو حکم؟ ابو طالب مکہ اور قریش کا سردار ہے، اگر اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ کام مکے میں رسم بن جائے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ محمد کے پیروکار تمہیں ابو جہل کیوں کہتے ہیں۔ ان احمقانہ باتوں کو چھوڑ دو۔ ابو طالب کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اور تم یہاں ابو لہب سرداری کے عہدے پر فائز ہو جائیں، اور اس وقت کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے تئیں یہ جرت کر بیٹھیں کہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ میری نظر میں تو عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو تہہ تیب کر دینا چاہیے۔ بس کریں، آپ لوگ قریش کے سردار ہیں۔ اگر محمد اور اس کے پیروکار دیکھ لیں کہ ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کوئی دمخم نہیں ہے۔ محمد ایک ہر دل عزیز شخص ہے، اور اگرچہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن ایک کامل شخص ہے۔ ابو طالب اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہے۔ بہترین کام یہ ہے کہ ہم ابو طالب کو ایک اور اچھا سا بیٹا دے دیں اور محمد کو ان سے چھین لے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام پورا کر دو۔ میری نظر میں تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ کون ہو سکتا ہے جو ابو طالب کی زندگی میں محمد کی جگہ لے سکے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ میں ایک شخص کو جانتا ہوں۔ خوش آمدید۔ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہم تم سے ملنے آئے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب، گویا تم اپنے بھائی اور قریش کے عمائدین کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے ہو؟ ابو طالب، اے مکے کے سردار، ہم ایک بار پھر یہاں آئے ہیں تاکہ دوبارہ تمہارے بھتیجے محمد کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ ہماری پہلے والی باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں راضی کرا لیں۔ اچھی بات ہے۔ میں یہ جاننے کے لیے بہت متجسس ہوں کہ اس بار تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو۔ شاید تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابو طالب، ذرا اس لائق اور طاقتور نوجوان کو دیکھ لو۔ اس کا نام عمار ہے، ولید ابن مغیرہ کا بیٹا۔ اس کے باپ کو تو تم جانتے ہو، یہ شاعر اور خطیب نوجوان ہے، اچھے انداز سے بات کرتا ہے، اور فصاحت و بلاغت اور ذہانت کو اس نے اپنے باپ سے ورثے میں حاصل کیا ہے، اسی بڑے تاجر سے۔ وہ خوبصورت اور دولت مند ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ شاباش شاباش،
वलीद को इस तरह के बेटे होने पर फख्र होना चाहिए। हाँ, इसी तरह ये बहुत तजुर्बेकार और तिजारती उमूर से आगाह है। इसमें ये सलाहियत पाई जाती है कि थोड़े से सरमाए से सबसे ज्यादा फायदा हासिल कर ले। वो पिछले साल यमन की तरफ एक कारवां लेकर गया और अफसानवी दौलत के साथ वापस आया। ये एक काबिल नौजवान है, घुड़सवारी और शमशीर जनी में भी महारत रखता है। शाबाश। ये मक्के के उन गिनती के चंद बाशिंदों में से है जो पढ़ना लिखना जानता है। तुम लोग खुलकर बात करो, तुम्हारा मकसद क्या है? इस जवान को तुम लोग यहाँ लेकर क्यों आए हो? अबू तालिब, ऐ कुरैश के सरदार, आओ और अमारा को, जो इन तमाम नेक और पसंदीदा सिफात का मालिक है, उसे अपना बेटा बना लो और उसके बदले मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। शर्म करो तुम लोग, तुम सबसे कहता हूं मैं, तुम लोगों ने अपनी बुरी सोचों को एक दूसरे के साथ ग्रह लगाकर इस तरह की कमजोर रस्सी तैयार कर ली है। क्या मैं अपनी आगोश में किसी और बेटे की परवरिश करूं और अपने लखते जिगर को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसका खून बहा दो? खुदा की कसम, मैं मोहम्मद का एक बाल भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चले जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ, जाओ। ऐ अबू तालिब, तुम खुद बता दो कि हमें क्या करना चाहिए, या हम तुम्हारी और तुम्हारे भतीजे की खुदसरी से तंग आ गए हैं। खुदसरी? ये सिफत तुम लोगों पर सादिकाती है। ये तुम हो जो खुदसरी और तासुब की बिना पर मोहम्मद की बातों को सुनने से अपने दिलो जान की समातों को बंद किए हुए हो और लम्हा भर के लिए गौर नहीं करते हो। वो निजात बख्श आवाज जो सहरा के दूर तरीन इलाकों के बाशिंदे सुनते हैं, तुम लोग उसको नहीं सुन रहे हो। क्यों? इसलिए कि तुम सुनना नहीं चाहते हो। क्या जानना चाहिए था? मैं जानता था ऐसा ही होगा। वो मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करने वाला। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। तुम हमेशा मेरी जिल्लत और बेबसी देखने की ख्वाहिशमंद रहे हो। अब तुम्हें एक अच्छा बहाना मिल गया है। तुम कुरैश को मेरे खिलाफ वरगलाना चाहते हो। मुझे तुम लोगों से कोई डर नहीं है। तुम जल्द समझ जाओगे उस दीन से मुकाबला करना जिसका मुहाफिज खुदा हो। बहुत बेहुदा काम कर रहे हो तुम लोग। हम मोहम्मद को तुम्हारे बाद कुरैश का सरदार मानने और अपनी दौलत को उसके इख्तियार में देने के लिए तैयार हैं, इस शर्त पर कि वो हमारे दीन से कोई वास्ता न रखे। क्या तुम नहीं सोचते कि वो एक किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गया है जो अपने आप को नबी समझता है? हम बेहतरीन तबीबों को उसके इलाज के लिए यहाँ बुला सकते हैं। ऐ अबू तालिब, हमारी ख्वाहिश को पूरी करो और एक बार फिर उससे बात करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुमने मोहम्मद से बात की अबू तालिब? उसका जवाब क्या था? मोहम्मद कहते हैं, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। मैं सिर्फ 4 तजावीज पेश करता हूं ताकि आप लोग उनमें से एक को कबूल कर लें। इस सूरत में आप अरबों पर हुकूमत करेंगे और गैर अरबों को अपना पैरो करार देंगे। हम एक बात की जगह पर उसकी 10 बातें मानने के लिए तैयार है। 10 बातें। आराम से अबू हकम, आराम से। पहले उनकी बातें सुन लो और फिर बात करो। मोहम्मद कहते हैं, खुदा की वहदानियत को कबूल करें और बुतों की परस्तिश छोड़ दें। क्या कहा है? मोहम्मद ने ये क्या वाहियात बात कर दी? 360 बुतों को छोड़ दे और सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करे, एक ही खुदा की, और वो भी ऐसे खुदा की जो हर जगह पर मौजूद है। ये बिल्कुल नाशुक्री की बात है, बिल्कुल नाशुक्री की। है अबू तालिब,
सुनो, तुम खुद बेहतर जानते हो कि हर कबीले का अपना एक बुत है। हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उनकी हिफाजत काबे में करते हैं। हमारे तमाम कामकाज और तिजारत की रौनक इन्हीं बुतों की बरकत से है, इन्हीं बुतों की बरकत से। आए चले हजरात, हमने अपना वक्त जाया किया है। यहाँ बैठकर बातें करना बेफायदा है। मोहम्मद की दूसरी तजावीज भी यकीनन इस तरह की होंगी। एक मिसाल पूरी दास्तान के लिए काफी है। आए चले। अबू सुफियान सच कहता है। चलो चलते हैं। नहीं, अगर हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे तो बनी हाशिम उसका बदला लेने के लिए खड़े होंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बेहतर यह है कि उसके पैरोकारों को मक्का वालों की आंखों के सामने अजियत दें ताकि कोई और शख्स मोहम्मद की दावत का मुस्बत जवाब देने की जुर्रत ना कर सके। सिर्फ इस तरीके से मोहम्मद का रास्ता रोका जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूं अबू सुफियान। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद के मानने वालों में कमी आ जाएगी। उसके मानने वालों का कोई हामी तो है नहीं, लिहाजा या तो वो शदीद ईजाओं की वजह से मोहम्मद का दीन छोड़ देंगे और या अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। हाँ। ना मारो मुझे, ना मारो, ना मारो मुझे। ना मारो मुझे, ना मारो। आज के बाद इस बुत की परस्तिश करोगी। तुम्हारा खुदा ये बुत है, ये बुत। नहीं, नहीं, ये तुम्हारा खुदा है, हुबल तेरा खुदा है। नहीं, शर्म करो तुम। मुझे इस तौहीन की सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, भेजा दो मुझे। नहीं, 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 नहीं। काफी है, अब इसका दम निकल चुका है। ना मारो, ना मारो, ना मारो। अगरचे मुसलमान ईसार व कुर्बानी के जरिए कुरैश के वहशियाना तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन मुसलमानों के सख्त हालात से हुजूर शदीद गम व गुस्से से दो चार हो गए थे। उन लोगों ने रख्त सफर बांध लिया जो इसके लिए ज्यादा आमादगी रखते थे।
वो मुशरिकीन को इत्तला मिलने से पहले रातों रात जद्दाह की बंदरगाह की जानिब चल पड़े। उस तरफ से चलते हैं। चलो चलो चलो। मुझे ताज्जुब है कि रसूलुल्लाह ने हमें यमन या हीरा हिजरत के लिए क्यों नहीं भेजा। मुझे इस बात का डर है कि रास्ते में कहीं बच्चों की जानें न तलफ हो जाएं। मेरा कबीला कई सालों से शाम में क़याम पजीर है और हम लोगों की तादाद भी कम है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हम सब का इस्तकबाल कर सकते थे। इसीलिए हमें हफ्शा से क्या वास्ता है। इस्लाम अगर ईसाइयों के लिए काबिल कबूल होता तो हिजाज में मौजूद उनके हम मजहब हमारी हिमायत करते। हुजूर जिब्रील अमीन से हम कलाम हुआ करते हैं, यानी उन पर ईमान नहीं रखते? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। उन पर ईमान रखो। यमन पर ईरानी बादशाहत का असर है और मुसलमानों के एक तबके का यमन या हीरा में मौजूद होना किसी लिहाज से भी अक्लमंदी नहीं है। ये भी बता दूं कि शामी हमारे हक में किसी किस्म के जुल्म से तरीक नहीं करेंगे। हाँ ठीक कहते हो, हमने एक साथ बड़ा लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। हाँ हाँ, तुम सच कहते हो। ये क्या है? ये कैसी बेएहतियाती है? क्या हुआ? वो क्या है? अरे मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। वो क्या है? मक्के वालों का रहनुमा हमारा पीछा कर रहा है। फुजैल के खैमों में जाओ और कह दो कि आग बुझा दे। ठीक है। कश्ती का मालिक कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हें कश्ती के मालिक से क्या काम है? हमें हबशा जाना है। भगोड़े गुलामों। भगोड़े? नहीं नहीं नहीं, हम भगोड़े नहीं हैं। नहीं, मेरा नाम जाफर इब्ने अबी तालिब है और इस जमात का सरपरस्त हूँ मैं चाहता हूँ हमें तुम हबशा पहुँचा दो। जाफर अबू तालिब के बेटे? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप का नाम मैंने बहुत सुना है। तुम्हें हबशा में क्या काम है? जानते हो, हम हबशा के हाकिम नज्जासी के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का एक पैगाम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम कल चल पड़ेंगे। लेकिन बात यह है, हम ठहर नहीं सकते। ये बहुत फौरी काम है, अभी चल पड़ें। आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आप मेरी बात माने। रात के इस वक्त? तुम्हें पता है कश्ती को आमादा करने में कितना वक्त लगता है? तुम्हें कल तक सब्र करना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है, खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। और हाँ, 4 आदमी का किराया 1 दीनार होगा। मैं हर 2 लोगों पर 1 दीनार देने को तैयार हूँ, बशर्ते कि इसी वक्त रवाना हो जाओ। 2 ग्रोह बना लो और हर ग्रोह दोनों कश्तियों में से एक में बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उठो उठो उठो, आज रात को ही चल पड़ेंगे।
अरे उठो भाई, तुम लोग सब उठो, जल्दी करो, जल्दी उठो उठो उठो। अरे भाई उठो और कश्तियों को तैयार करो, हम अभी हबशा के लिए रवाना हो रहे हैं। उन दो कश्तियों को यहां से भागने मत दो। नहीं, नहीं। ये कैसी आवाज थी? लगता है वो आ रहे हैं। सलाम हो मक्के के बुजुर्गों पर। क्या तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया? बोलो जल्दी क्या हुआ, बोलो। हम बहुत देर से पहुंचे, वो दो कश्तियों के जरिए हबशा की जानिब रवाना हो गए। लानत हो ऐ नालायकों! किस्मत ने उनका साथ दिया, वरना हमने कोताही नहीं की थी। देखते हो, कभी हफ्ते में एक कश्ती भी रवाना नहीं होती है, लेकिन आज रात 2 कश्तियां चली गईं, वो भी ऐसे मौके पर कि गुमराह लोग बंदरगाह पहुंच चुके थे। लानत हो ऐसी किस्मत पर। आप लोग फिक्रमंद ना हो, पुरसुकून रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारी जहमतें जरा बढ़ गई हैं। कंजूसी से काम न लें, सोने के सिक्कों की थैलियां जरा खोल दें, बस। तुम्हारा मतलब क्या है? उनको हबशा से वापस ले आएंगे। ये मुमकिन नहीं है, अब हमारे हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। नज्जाशी उन लोगों को हमारे हवाले नहीं करेगा जो उसके पास पनाह लेंगे। इसका भी एक रास्ता मौजूद है। नज्जाशी के दरबार में हमारे कुछ दोस्त हैं। बेहतर है अम्र इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया को भारी तोहफों के साथ नज्जाशी के दरबार में भेजें। दोनों मक्कार अशखास तजर्बेकार और अय्यार हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो भागने वालों को साथ लेकर लौट आएंगे। कैसा रहेगा? तुम लोग मुवाफिक हो? हाँ, हम रवानगी के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त है। दोनों तैयार हो? तोहफे तैयार कर लिए? तुम्हें मालूम है कि नज्जाशी के साथ किस तरह बात करनी है। हाँ, आप फिक्रमंद ना हो। इस सफर का अंजाम तुम दोनों की जहानत व फतानत पर मुनस्सिर है। आप इस बात से बेफिक्र रहें। मैं और इब्न रबिया इस सफर की अहमियत से अच्छी तरह आगाह हैं। जब दरबारी हमारे तोहफे वसूल कर लेंगे तो आप मुतमईन रहें कि वो खुद नज्जाशी को आमादा करेंगे कि वो मुहाजिरीन को निकाल दें। तुम लोग इस हद तक अपने आप पर यकीन न रखो और काम को आसान न समझो। मुहाजिरीन के ग्रोह का सरबरार जाफर है। उसको फन्नी खिताबत अपने बाप अबू तालिब से विरसे में मिला है। मुझे नहीं लगता है कि वो बेकार बैठा रहेगा और तुम लोग अपने मकसद को हासिल करो। ऐसा आपका सोचना है। शायद वो खिताबत में हम पर बरतरी रखता होगा, लेकिन दरबारी ज्यादातर हमारे हाथ की तरफ देखेंगे। अच्छी और पुरमग़ज़ बातें एक तो ही दस्त के मुंह से जो निकलती हैं, उनकी हैसियत ऐसे ही होती है जैसे पानी का बुलबुला। किसी को क्या पता, शायद अमरा सही कह रहा है।
आलम पना नज्जाशी आजम तशरीफ ला रहे हैं। हम आपकी शान और शौकत के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं। ऐ अजीम व आदिल इंसाफ पसंद बादशाह नज्जाशी आजम आलम पना, हाल ही में हमारे कुछ नातजुर्बेकार और अक्ल से आरी नौजवानों के एक गिरोह ने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर एक नया दीन कबूल कर लिया है, जो न आपके मुल्क हबशा के सरकारी दीन से शबाहत रखता है और ना ही हमारे आबा व अजदाद के दीन से। इस ग्रोह का मकसद इख्तलाफ पैदा करना और मक्के की हुकूमत हासिल करना है। इसके अफराद आपके मुल्क में पनाह गुज़ी हो चुके हैं ताकि आज़ादी और हबशा के पुरअमन माहौल और आप जो दूसरों के नज़रियात का एहतराम करते हैं उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए आपके बड़े मुल्क में अपने ख़तरनाक दीन को फ़रोग़ दे सकें। और इसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? मैं मक्के के अकाबरीन की जानिब से हबशा के ताकतवर बादशाह आला हज़रत नज्जाशी आज़म की खिदमत में, जो कि हबशा के ताकतवर और बिला मुनाजा बादशाह हैं, सलाम पेश करता हूँ और आला हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन ख़तरनाक अफराद को निकाल देने के अहकामात जारी फरमाएं और उनको हमारे हवाले कर दें ताकि हम अपने मुल्क में उनको ज़रूरी हिदायत के ज़रिए अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ लौटा सकें। इस तरह इस मुल्क में हमारे दुश्मन कोई मरकज़ हासिल नहीं कर सकेंगे और आपके साथ हमारी दोस्ती पायदार रहेगी। उम्मीद है आप इनायत फरमाएंगे। आलम पना, मक्के के साथ हमेशा हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। इन तखरीबकारों की हबशा में कोई जगह नहीं है आलम पना। मुनासिब होगा कि आलम पना नज्जाशी इन लोगों को जितना जल्दी हो सके हबशा से निकालने का हुक्म सादिर करें। आपके ख्याल में हमारा अंजाम क्या होगा जाफर? क्या नज्जाशी हमें मक्का वालों के हवाले कर देंगे? पुरसुकून रहो, रसूल खुदा नज्जाशी जैसे शख्स के बारे में गलती नहीं करेंगे। तुम मुतमईन रहो। जिस दिन हुजूर ने हमसे हबशा जाने का फरमाया, आपने इस दिन के बारे में भी सोचा था, वरना वो हमें यमन, हीरा या किसी और जगह पर भेज सकते थे। तुम अपने आप पर खौफदारी होने न दो, खुदा पर तवक्कुल करो, खुदा पर तवक्कुल करो। पुरसुकून रहो, अपने आसाब पर काबू रखो, आसाब पर काबू रखो, खुदा पर भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, मुतमईन रहो। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, मजबूर लोगों का एक गिरोह मेरे मुल्क में पनाह लेने आया है, जो तुम्हारी नज़र में मुट्ठी भर शोरीसी और अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर हैं।
लेकिन मैं तुम्हारी बातों को बगैर तहकीक और जायजे के नहीं मानूंगा, और जब तक तुम्हारा दावा मेरे लिए साबित नहीं हो जाता मैं किसी सूरत में उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। पनाह गुज़ीनों को पेश किया जाए। आलम पनाह, आप क्यों अपने आप को जहमत देते हैं? तहकीक की जरूरत ही नहीं है। हमने हकीकत के अलावा आपसे कुछ नहीं कहा है। तो फिर उनका सामना करने से तुम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। पनाह गुज़ीनों को मेरे सामने पेश किया जाए, जल्दी करो। इताअत आलम पनाह। लानत हो शूर किस्मत।